So liver perform very several diversified functions. Before really jumping into the concept of the liver function test, first we'll see certain functions of the liver. Certain functions of the liver. So the first function of the liver is the metabolic function. It is actively participate in the metabolism of carbohydrate, lipids, protein metabolism. Whatever the thing food products are going to get reached to your stomach, the liver is going to secrete some kind of bile juices which are actively going to participate in dissolving the carbohydrate, lipids, and protein inside your stomach. Apart from that, liver is going to get perform the excretory function. After degradation of heme, the end products will be formation of the bilirubin in terms of heme degradation and other things, as well as cholesterol is going to get degraded. The final product is going to get formed in the form of bile pigments and the bile salt, and the cholesterol that is going to get excreted from the liver into the intestine. From the liver into the intestine. Protective and detoxification. Kupffer cell is going to get performing the phagocytosis. What do you mean by the phagocytosis? Engulfing of bacteria. Engulfing of the bacteria or engulfing on of any kind of foreign material and destroying it. That process will be called in as a phagocytosis. Okay? What do you mean by the apoptosis? Apoptosis. Apoptosis किसको बोलेंगे? A-P-O-C-Y-T-O-S-I-S. apoptosis बोलिए. Apoptosis. It's a programmed cell death. A simple definition. Programmed cell death. After completing the life cycle, cell need to get replaced. So God has created it in such a way that whenever the life cycle is going to get completed, automatically the programmed cell death is going to get occur. That cell is going to remove from the body. So in this case, it is saying that Kupffer cells, there is a special type of cells which is present inside your liver. These are responsible for the phagocytosis, and phagocytosis, it is a term which is going to get used in order to engulfing the foreign material, foreign object, and going to get destroyed and removed from your body. As well as ammonia is going to get detoxified to the urea. Ammonia is the toxic substances which is going to get formed due to the degradation of the protein and the protein sequences when it is going to get happen. That amino acids particularly is going to get breakdown. When the amino acid is going to get breakdown, ammonia is going to free ammonia going to get released from the amino acid. अमाइनो एसिड्स अपन बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा. जब अमाइन ग्रुप डिग्रेडेशन में जाएगा तो फ्री अमोनिया आपको बॉडी के अंदर रिलीज होगा. दैट फ्री अमोनिया इज वेरी हार्मफुल टू योर बॉडी, isn't it? So this ammonia is going to converted into the urea inside the liver mostly. ठीक है? That's the reason it is also helpful in the cases of the detoxification. That anything is going to get detoxified inside your body, it is also known as xenobiotics. Okay. Now coming to the hematological function, participate in the formation of the blood. When I have been teaching to you in the first year, you might have remember liver is also actively going to get participate in formation of the blood cells inside your body. Okay. Third week of the gestation, yolk sac is responsible. Third month is responsible for the liver is responsible. After the third month, reaching to the puberty, bone marrow is responsible. Okay. In that way, it is going to get participate. See if your bone marrow is going to get completely inactive. In a certain book, it has been written that liver can also capable of producing the blood cells. ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन मैरो से ब्लड सेल जनरली प्रोड्यूस होते हैं, अगर बोन मैरो ऐसा हुआ कि अगर उन्हें इनएक्टिव हो गया कंप्लीटली, तो लिवर उसके रिप्लेस में आपके ब्लड सेल्स बना सकता. Coming to the storage function, glycogen, vitamin A, D. What is the fat soluble vitamin? Fat soluble vitamin कौन से बेटे बोलो? A, D, E, K. The rest all the water soluble. A, D, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. These are the fat soluble vitamins. That means that they are insoluble in the water and they are soluble in the organic solvents. Okay? Whereas rest all the vitamins are the vitamins are water soluble. So these liver act as a storage function by storing the glycogen, vitamin A, D, and B12, iron, etc. They are going to get stored inside the liver, and when your body needs that thing, the body is going to get released. Okay? Now, causes of the liver function, that is causes of the liver function नहीं आना है यहाँ पे, causes of the liver diseases. Mostly, liver is going to get attacked by the viruses, especially in cases of the hepatitis A, hepatitis B.
ये बहुत सारे लोगों को कॉमन वायरस है जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस देयर आर अदर वायरस आल्सो देयर व्हिच इज गोइंग टू गेट लीड टू द सिरोसिस ऑफ द लिवर, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। ठीक है, लिवर का सड़ना फूलना जिसके अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो, सिरोसिस ऑफ द लिवर में लिवर आपका सड़ जाता है। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म लीडिंग टू द सिरोसिस ऑफ लिवर। फैटी लिवर, अगर तेल गिर की चीज़ें ज़्यादा खाएं तो उस पे आपके लिवर के ऊपर फैटी लेयर जमना शुरू हो जाती है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का जो एंड प्रोडक्ट है वो लिवर है। कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड होता है इस लिवर के अंदर इन ऑर्डर टू form the bile pigments, the cholesterol undergo the degradation process. So whatever the periphery cholesterols are there, if cholesterol are too much high inside the liver, so what the HDL will do? What is the HDL? What is the role of the HDL? It will try to take the cholesterol from the periphery tissue and lead pathway to the liver. liver में एक हद तक आपके कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करेगा ना, उसके बाद में क्या होता है लिवर के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, that is called infiltration of the fatty liver, fatty acids inside the liver that will lead to the fatty liver. Okay, so in cases of the virus hepatitis A and hepatitis B, mostly responsible, there are other viruses also there. Apart from that, there are toxin and alcohol are responsible for the damage in the liver. ठीक है, चलिए, coming to the test to access the liver function, LFT generally used to perform in order to get the liver function, in order to get liver damage. इसका तो दिमाग खराब हुआ होगा। सानिया बोले जो भी बोले हम भी बोलते हैं सुनने वाले। सानिया अपन बोला ना LFT अपन जनरली परफॉर्म करते बच्चों जब कभी भी अपने को लिवर की हेल्थ मालूम करना है, we used to perform the LFT, but in this case sometimes क्या होता था मालूम LFT भी ऐसा कि आप नहीं बोल सकते, because in certain आपके बॉडी के अंदर बात वक्त क्या हो जाता मालूम है, आपका लिवर पूरा भी सड़ गया ना तब भी आपको लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल बताते, ऐसा हो सकता certain times। ठीक है, ऐसा भी एक्सेप्शनल केसेस होते। आप देख क्या होता मालूम बात वक्त लोगों को कुछ भी साइन एंड सिम्टम नहीं आते, ये एसिम्प्टोमेटिक रहता हो, सडन उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो अपन जैसो ऐसा कोई की डायग्नोसिस भी नहीं बोल सकते, तो कोरिलेट करते हुए चलना पड़ता है आपको बहुत सारी चीजों की वजह से, बिकॉज लिवर एक डाइवर्सिफाइड फंक्शंस प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम आप नहीं बता सकते। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, हेमाटोलॉजिकल फंक्शंस है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस है, कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके आप नहीं बोल सकते। विल सी liver LFT are the biochemical test to detect the liver health. It will be help to detect the liver damage, but it is not the only whole and sole marker. You should also remember this. Two major points are there which you should be remembering while performing the liver function test. The first is that liver can perform many of its function almost normally despite the liver damage. अगर थोड़ा थोड़ा लिवर अगर डैमेज भी हो गया ना तब भी उन्हें दूसरे ऊपर के जो हेमाटोलॉजिकल फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, दूसरे फंक्शन उन्हें नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकता, नॉर्मली हो सकता है। Point 2, selection of the right test in the LFT because the function which may measure which not be adversely affected. क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको लिवर पैनल जब करा रहे सिर्फ सीरम बिलिरुबिन बढ़ रहा, ठीक है, अगर सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल आ गया इसका मतलब लिवर आपका अच्छा है नहीं बोल सकते आप, हो सकता है उसके SGOT लेवल्स बढ़ के होंगे, ALP लेवल्स बढ़ के होंगे, एल्बुमिन लेवल्स लो होंगे, तो पूरे एक स्पेसिफिक टेस्ट को लेके आप लिवर की हेल्थ को नहीं बोल सकते बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, bilirubin it is a bile pigment and it is going to get excreted and product of the heme degradation. What do you mean by the heme degradation? Heme degradation किसको बोलेंगे बच्चों?
मैं पतला करता देखिए when the life cycle of the RBC is going to get happen completed, then the hemoglobin. तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना हुआ है बच्चों, हीम से और ग्लोबुलिन से, ठीक है। ग्लोबुलिन अगर टुकड़े 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 होकर उन्हें अमीनो एसिड्स बन जाता है। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन पार्ट है अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का, तो अमीनो एसिड्स में जाके उन्हें फिर से मिल सकता। जबकि हीम दो चीजों में डिवाइड होगा, किसमें किसमें होगा बोलिए ना प्लीज। आयरन और आयरन एंड प्लीज, मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ। आयरन एंड प्रोटोफोरफायरिन, प्रोटोफोरफायरिन, प्रोटोफोरफायरिन। जब हीम स्ट्रक्चर जब बन रहा था ना, तो फर्स्ट पायरोल रिंग बनता, 4 पायरोल रिंग इज गोइंग टू गेट जॉइंड, इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोटोफोरफायरिन, ठीक है। इन बिटवीन या इन बिटवीन क्या रहेगा, पेरस, पेरस, ठीक है। तो ऐसा डिग्रेडेशन भी हुआ तो ऐसे होगा ना, ठीक है। नाउ व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट व्हेन the bilirubin how is going to get formed, when these protofirin is undergo more degradation, then there will be the formation of biliverdin. So it is saying that hemoglobin का end product क्या रहेगा, biliverdin, bilirubin, ठीक है। So here it is saying that it is an end product of the heme metabolism. After completing the heme degradation, जब टुकड़े 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 होके हीमोग्लोबिन जब टुकड़े टुकड़े होता है, तो end product क्या निकल गया था, bilirubin. Okay, आ गया। The serum bilirubin, the normal concentration of it in the serum bilirubin, it is 0.2 to 1.0 milligrams per deciliter, 0.2 to 1.4 milligrams per deciliter in cases of the direct, indirect and total bilirubin. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है या नहीं है, बोलिए। मालूम है? किसको बोलेंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन, बोलिए। हेपेटिक, प्लीज डायरेक्ट बिलिरुबिन किसको बोलते हैं? अरे नहीं मालूम है तो बोलो, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए जनरली हीमोग्लोबिन दो चीजों में डिग्रेड होता है, तो साथ साथ कितना अमीनो एसिड जो प्रोटीन पार्ट है, इसके दो पार्ट में डिवाइड किया आयरन, ये दो पार्ट में डिवाइड करें, जिसको बोलते हैं आप आयरन एंड प्रोटोफोरफायरिन, प्रोटोफोरफायरिन, ठीक है। ये प्रोटोफोरफायरिन इन्हें कन्वर्ट होता है किसमें, बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन। अब ये स्टिल इट इज इन द सर्कुलेशन, इट इज स्टिल इन द सर्कुलेशन। Now these kind of bilirubin will be called as a unconjugated bilirubin, unconjugated bilirubin, unconjugated bilirubin, bilirubin। अच्छा, unconjugated bilirubin का अदर नाम क्या है मालूम है? What is the other name for the unconjugated bilirubin? is the indirect bilirubin। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, खाली having the circulation, ठीक है। और इसका और क्या है मालूम है नाम? water insoluble bilirubin, insoluble bilirubin, इंडायरेक्ट कौन है? मैं ठीक है। लेकिन पीवी टोटल आप भी खाली इसे समझ लीजिए ना, आप बोल पूछो। डायरेक्ट वाले गाइडेंस मिलता है ना, लाइक हाउ, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल है, ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एल्बुमिन आता है, एल्बुमिन विल बी एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, albumin will be considered as a transport protein. What is the role of it? Is it will going to transfer the material from one place to the another place. Now what is will going to get happen, you know? Now अच्छा, मैं पैरेलली में थोड़ा लेक्चर को थोड़ा ट्विस्ट करके, ठीक है। Now इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ना बच्चों, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर आप लीवर पैनल में क्या देखते थे अपन, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर मेरे को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मालूम करना है ना, टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन इज इक्वल टू इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे ही हमेशा देता हूं मैं। आपको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ मालूम है, 50 बच्चों की अपने पास कैपेसिटी है, 25 बच्चे प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने हुए? When you are having a known concentration, out of that some concentration and known concentration, unknown concentration आप मालूम कर सकते। सेम वे में ऐसे होता है। तो ये जो बिलिरुबिन है, इसको अपन बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड द वाटर इनसॉल्युबल। नाउ इफ
the indirect bilirubin level is going to get high now. These kind of jaundice will be called as a hemolytic jaundice. Hemolytic jaundice. ऐसा jaundice जो hemolysis की वजह से होगा। ठीक है, और अच्छा की पॉइंट क्या है मालूम है समझने के लिए, hemolytic jaundice आप जब कभी भी देखते हैं ना, the person used to suffer from the hemolytic jaundice, it is a key point, they are going to have a low level of HB. क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है भाई, छोड़ रहे ना तुम HB को, कहां से बेसिक करते हैं, समझ में बात? ठीक है ना, what this albumin is doing, the albumin is going to come in and it is transporting that biliverdin, green color complex बोलते हैं जनरली, उन्हें येलो नहीं दिखता आपको, ठीक है, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अपन biliverdin को। इसको क्या कहते हैं अपन, रास्ता बता रहे, किधर तरफ रास्ता बता रहे जी भैया, लिवर में जॉब होती है, कौन आगे रास्ता बता रहा है उसको, अदर फैक्टर्स भी है, मैं कहानी के जैसे समझा रहा हूं, ठीक है। चलो इन्हें किधर आ रहा, लिवर में आ रहा हूं, लिवर समझो, ठीक है, लिवर में आ रहा, लिवर में आते ही जिसके पास लिवर में एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ इन्हें कंबाइन करता, कौन कंबाइन करता, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जैसे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जैसो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ आप मिलता ना होने, मिलता जब हम उसके कॉन्जुगेशन दोनों का मिलन हो गया तो क्या बोल रहे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को और क्या बोलते जी भैया, डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसको डायरेक्ट करना दिया पर जाओ तुम उधर बोल के, अब इसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है ना। डायरेक्ट बिलिरुबिन को और क्या बोल सकते हैं, ये जब कॉन्जुगेटेड होगा ग्लूकोरोनिक एसिड से तो इनसॉल्युबल से नहीं बन गया सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, हां सॉल्युबल बिलिरुबिन और सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल बिलिरुबिन इन वाटर, ठीक है, ओके ना। लिवर में अगर बिलिरुबिन भरना शुरू हो गया है समझो, अब ये पूरा एंड प्रोडक्ट है, नहीं कहां किधर निकलना, निकल के चले जाना यहां से, ठीक है। तो इसके अंदर लिवर में और एक भी पार्ट रहता है, उसको क्या बोलते जी भैया पर, गैल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। गैल ब्लैडर की जो नली रहती है वो किससे कनेक्टेड रहती है, इंटेस्टाइन से, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई। तो ये क्या होता, ये जितना भी लिवर के अंदर जितना भी बना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर बढ़ के दिखाना, डायरेक्ट बिलिरुबिन जब बढ़ के दिखा तो ऐसे टाइप के जॉइंटिस को बोलते हैं हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस। कई को बोल रहे हैं हेपाटोसेलुलर, हेपाटो स्टार्ट होता है, लिवर सेलुलर स्टार्ट होता है। सेल अगर लिवर के पास डैमेज, हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं बढ़ा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम लिवर से है जिसकी वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया रहा, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जॉइंटिस क्या बोल गया, हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस, ठीक है ना। कमिंग फ्रॉम द लिवर इट इज गोइंग टू सेंड इट टू द गैल ब्लैडर, जनरली गैल ब्लैडर। अगर गैल ब्लैडर कने पहुंचाओ नहीं, अगर ऑब्स्ट्रक्शन दिखा गैल ब्लैडर में, ऑब्स्ट्रक्शन माने रुकावटें, रुकावटें एक बार सकती भाइयों बहनों, स्टोन, गैल स्टोन का रेस्पॉन्स, और एक बार सकती रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शन कब पैदा होता, इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड। अगर कोई चीज इन्फ्लेम्ड हो गई, नैरो होगी उसकी पैसेज, कंस्ट्रिक्ट होगी उसकी पैसेज, देन यू विल सी द ऑब्स्ट्रक्शन। तो ठीक है, अब जो बिलिरुबिन पूरा इथेनॉल से जो फॉर्म हुआ था यहाँ पे आ गया, तो इसको अपन टोटल बिलिरुबिन बोल सकते हैं ना जी, ठीक है। अगर टोटल बिलिरुबिन जनरली अगर आया तो यहाँ पे बोलते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्शन। पॉइंट वन, यहाँ तक तो एक जबरदस्त बच्चों को याद है, ठीक है, ये पूरे बच्चों को याद है। बाद वक्त क्या होता था मालूम है, सब टाइम्स क्या होता था मालूम, एक तो उसका लिवर खराब है, दूसरा उसका एचबी भी डिग्रेड हो रहा, दो भी कंडीशन हो रही, एक तो उसका लिवर खराब है, उसका ने एचबी भी अंडरगोइंग द डिग्रेडेशन, ऐसा हो सकता, एक नहीं बिल्कुल हो सकता। तो ऐसे टाइप की जॉइंटिस को आप बोलते हैं बाइफेसिक जॉइंट। ऐसे केसेस की जॉइंटिस को आप बोलते हैं बाइफेसिक। बाइफेसिक जॉइंटिस किसको बोलेंगे भैया अपन, उसका लिवर तो खराब है, पैरेलली हीमोग्लोबिन भी अंडर डिग्रेडेशन, थोड़ा मेरे को कट रहा है हीमोग्लोबिन,
ठीक है ना, यहाँ से निकल के इन्हें यहाँ पे आ गया। अच्छा, समटाइम डायरेक्ट बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी बढ़ता, समटाइम। ओके, बाइफेसिक, हेपेटोसेलुलर, हेमोलाइटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव। Sancho. Make an objective because I have done broader parts. जो पास होने के लिए समटाइम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी। आपको मैं एक क्वेश्चन रखो, ये मैं बोलूँ। चल, बाइफेसिक जॉन्डिस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर। अच्छा, यहाँ पे ही आ गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में अगर आया, अगर स्टूल के जरिए 90% निकलता है इन्हें बाहर, स्टूल के जरिए 90% निकलता है। जस्ट दैट्स द रीजन स्टूल कलर will be yellow to brownish in color, yellow to brownish because due to the presence of stercobilirubin. Stercobilirubin जो कलरिंग पिगमेंट है, which is giving color to your stool, it will be called as a stercobilirubin, and 90% of the stercobilirubin going to pass out through the stool. और यूरिन का नॉर्मल कलर क्या है बच्चों? पेल येलो जनरली, ठीक है। स्ट्रॉक कलर भी याद आना है ऐसा, पेल येलो, ठीक है। नाउ द पेल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज गोइंग टू गेट गिवन बाय द दिस bilirubin, that is urobilirubin, ठीक है। urobilirubin, why the urine color is slightly yellow in color in the intake picture due to the presence of the urobilirubin। चलिए डिग्रेडेशन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now coming to the, अब आप देखिए नॉर्मल concentration of the total bilirubin is 0.2 to 1.0 milligrams per deciliter, that is the total bilirubin। 0.2 to 0.4 milligrams per deciliter direct bilirubin, 0.2 to 0.6 milligrams per deciliter for the indirect bilirubin। अभी आप direct bilirubin, indirect bilirubin, total bilirubin के different names भी मालूम करें, बाइफेसिक जॉन्डिस भी मालूम करें, there are other things you have to know। Coming to the icterus index, icterus, ICTREUS, icterus index, simplest ways to perform the measure the yellow color of the serum due to the bilirubin is a rather crude and almost outdated rapid assessment of the neonatal jaundice। आंखों का पीला हो जाना और bilirubin serum पीला दिखना, ये पुराने जमाने के मेथडोलॉजी थे जो आप करके देखते थे, लेकिन आज के जमाने में आंखों का पीला होना, पीले नहीं है तो भी पीला हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आउटडेटेड मेथड है, हमेशा आप एलएफटी को प्रेफर करें। अगर आपको ऐसा दिख रहा आपको जॉन्डिस हो गया बल्कि, तो आप पहले एलएफटी करा लो, वो पूरा कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट और नॉट दैट थिंग। येलो कलर इज डिस्कलरेशन विल बी पार्टिकल्स आर icterus एंड सीइंग दैट थिंग इन केसेस ऑफ दैट इज कॉल्ड एज icterus इंडेक्स। एक चार्ट है बना हुआ जो किस पे देखते बेटा अपन, नियोनाटल जॉन्डिस, छोटे बच्चों के अंदर जॉन्डिस कॉमन है, कई तो कॉमन है। हाँ, जैसा बच्चा पैदा होता उन्हें अम्मा के आरबीसी देने से पैदा होता, अम्मा के आरबीसी पेट में बना स्वाद, फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना जी अपन। तो ना फीटल हीमोग्लोबिन से कोस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना, अडल्ट हीमोग्लोबिन में डालना भाई। फीटल हीमोग्लोबिन से अडल्ट हीमोग्लोबिन में जाना है 12 साढ़े 11। इसीलिए न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, बोलते हैं जॉन्डिस बनना शुरू कर बेटे, बहुत टाइम अंदर रहता है। अच्छा बना लो, बाहर निकलो तो मगज ठीक है। नियोनाटल छोटे बच्चों के अंदर जॉन्डिस अगर दिख रहा अप टू द 10 11 12 तक भी नॉर्मल है। नॉर्मल लेवल क्या है, 1 है ना जी। तो आप देखो न्यूबॉर्न बेबी में उन लोगों को जॉन्डिस रहता, बेबी बच्चों लोग क्या करते, उन लोग वो ब्रेक डाउन करके न्यू फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन बना दी। अब फीटल हीमोग्लोबिन के चेंज बोलो,
एक 2 अल्फा और 2 बीटा जहर पाओ छोड़ा इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी अच्छी बात है डेल्टा एप्सिलॉन नहीं मिल रहा तो सस्ता जहर बोलिए ऐसे भी हम प्रोवाइड कर देंगे चुगो में दवा पाउडर मैंने तो बहुत अच्छा फेवरेट वाला तो है ये पढ़ना पड़ेगा फिर ये बन पड़ेंगे आप ग्लोबुलर चेंज होगी क्या करना है चलिए ये जो बिलिरुबिन के बारे में कहानी है ना इसका एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट है देखो वैंडरबिल्ट रिएक्शन वैंडरबिल्ट रिएक्शन एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है पहले डिस्कवर जो करा ना those is discovered this thing is a Vanderbilt reaction अच्छा वैंडरबिल्ट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैंडरबिल्ट रिएक्शन और बहुत इजी भी है समझने के लिए ऐसा कोई टफ साइंस नहीं है वैंडरबिल्ट रिएक्शन वैंडरबिल्ट रिएक्शन बिलिरुबिन का नाम कभी भी आपके सामने एग्जामिनर लिया ना आप वैंडरबिल्ट रिएक्शन के बारे में जरूर बोलो ठीक है now specific test to identify the increase in serum bilirubin और आपके लेबोरेटरी में जितने भी बिलिरुबिन मेथड्स करते हैं ना तो इसकी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई द मैलोस specific test to identify increase in the serum bilirubin normal serum bilirubin levels give a negative Vanderbilt reaction normally इन्हें पॉजिटिव नहीं आता अगर आप नॉर्मली है ना आपको जॉइंटिस नहीं है ना तो आपको पॉजिटिव नहीं आता पॉजिटिव सिर्फ किसको आता those who are suffering from the high levels of the bilirubin they're only going to get the Vanderbilt reaction positive okay now Vanderbilt reagent किससे बना हुआ है equal volume of the sulfonilic acid and the sodium nitrite दोनों की equal volume अगर ले लिए तो Vanderbilt reaction का Vanderbilt reagent बनता the reagent react with the bilirubin to form a purple color complex that will be called as a azobilirubin ठीक है क्या ले रहे हैं आप दो इक्वल वॉल्यूम ले रहे सल्फोनिलिक एसिड ले रहे हैं देन यू आर टेकिंग द सोडियम नाइट्राइट एंड अगर आप बिलिरुबिन से इसको रिएक्ट कराए बिलिरुबिन से रिएक्ट कराए सिर्फ बिलिरुबिन से अगर हाई लेवल्स रहे तो ये क्या करता पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल रहे अजोबिलिरुबिन ठीक है अजोबिलिरुबिन चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन अब आपको मालूम है ना कि भाई डायरेक्ट किसको बोलते हैं ठीक है कॉन्जुगेटेड किसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड किसको बोलते हैं ठीक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सही बोलो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ठीक है unconjugated bilirubin it is insoluble in water conjugated bilirubin is soluble in water Vanderbilt react with conjugated bilirubin देखिए भैया आप एक सैंपल लिए ठीक है सैंपल में सीरम था सीरम के अंदर बिलिरुबिन लेवल्स हाई है अब आपको देखना है बिलिरुबिन लेवल जो हाई है वो किसकी वजह से है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से ठीक है अब आप क्या कर रहे हैं Vanderbilt रिएक्शन करा रहे हैं Vanderbilt react with the conjugated bilirubin to give a purple color immediately within the 30 seconds. Refer to the direct positive. सिंपल वे में बोलूं आप रिएजेंट लिए कौन सा रिएजेंट लिए थे भैया Vanderbilt रिएजेंट लिए Vanderbilt रिएजेंट लेके टेस्ट ट्यूब में आप सीरम लिए सीरम लेके आप क्या करें Vanderbilt सॉल्यूशन को डालते 30 सेकंड में पर्पल हो गया डाल देंगे 30 सेकंड में पर्पल हो गया दैट मींस दैट the test is positive for conjugated bilirubin that is direct positive 30 seconds में एक टेस्ट ट्यूब लिए उसके अंदर सोडियम का Vanderbilt का रिएजेंट दिए सीधा बिलिरुबिन डालते तो क्या हो गया पर्पल कलर हो गया डालते 30 सेकंड में रिएक्शन दिखा 30 सेकंड में रिएक्शन दिखते क्या बोले वो डायरेक्ट पॉजिटिव है डायरेक्ट पॉजिटिव है अब आप एक रिएजेंट टेस्ट लिए टेस्ट ट्यूब लिए उसके अंदर सीरम लिए उसके अंदर लिए Vanderbilt रिएजेंट डालते पर्पल कलर नहीं आया तो उसके बाद क्या करें आप एडिशनल टू दैट मेथनॉल ऐड करें आप अल्कोहल एक मेथनॉल इज वन टाइप ऑफ एल्कोहल आप मेथनॉल डालने के बाद में 30 मिनट तक आप वेट करें 30 मिनट्स के बाद देखिए पर्पल कलर हुआ फॉर्म
That means that it is indirect and unconjugated bilirubin. मेथनॉल यहाँ पे क्या कर रहा है मालूम, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड कर रहा है, वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल कर रहा है। जैसा ही वाटर सॉल्युबल बनते चुने आपकी वैन डर वाल्स रिएक्शन होता और इट्स गोइंग टू गेट टर्न। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर आप क्या डाले, वैंडरबर्ग रिएजेंट, वैंडरबर्ग रिएजेंट, ये वैंडरबर्ग रिएजेंट डाल, इसके अंदर सीरम डाले, पेशेंट डाल के 30 सेकंड में उन्हें पर्पल कलर हो गया, कॉन्जुगेट, तो इसको बोलते हैं आप कॉन्जुगेट, डायरेक्ट कॉन्जुगेट। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब लिए, अब ऐसा समझो आप इसमें सेम करें, वैंडरबर्ग रिएजेंट डाले, इसके साथ सीरम भी डाले, सीरम येलो दिख रहा, आपको देखने को दिख रहा, एक्ट्रेस इंडेक्स आपका दिख रहा, लेकिन दांत के रिएक्शन नहीं बताया। ठीक है, आप क्या करें, सीरम येलो दिख रहा, फिर भी डाल के रिएक्शन नहीं बता रहा, तो आप क्या करें, एडिशनली क्या डाल रहे हैं, मेथनॉल डाल रहे हैं। ये मेथनॉल क्या करता, एडिशनल एजेंट है, इन्हें क्या करता, ये जो अनकॉन्जुगेटेड है ना, उसको कॉन्जुगेटेड बना, ये डालने के बाद 30 मिनट तक आप वेट करना, उसके बाद में यू विल एबल टू सी द पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। 30 मिनट्स के बाद में अगर आया तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट पॉजिटिव, इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अब थोड़े दिनों को क्या होता, बाइफेजिक टाइप ऑफ जॉन्डिस रहता। ठीक है, बाइफेजिक टाइप ऑफ जॉन्डिस होगा। अब यहाँ पे डार्क पेज पर्पल कलर हो गया समझो, तो रुक जाना नहीं आप, यू नीड टू ऐड मेथनॉल। अगर मेथनॉल इस पे डाल दिया अगर आप, तो मोर इंटेंस पर्पल कलर फॉर्म होगा, बहुत डार्क हो जाता 30 मिनट्स। तो दैट मींस दैट इट इज सफरिंग फ्रॉम द बोथ टाइप ऑफ जॉन्डिस, दैट इज बाइफेजिक जॉन्डिस। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द वैंडरबर्ग रिएक्शन। बहुत इजी है ना जी, अब मैं थ्योरेटिकली पढ़ता हूं, देखो आप, Vanderburg react with a conjugated bilirubin to give a purple color complex immediately within the 30 seconds, refer to direct positive, and or additional added to the methanol dissolve unconjugated bilirubin normally within 30 minutes refers to as indirect positive. If serum contain both conjugated and unconjugated, intense color is going to get formed. That means that it is more intense color is going to get formed. अब यहाँ पे थोड़े से ना दिए गए, indirect bilirubin refer to the hemolytic type of jaundice, direct positive is referred to the obstructive and hepatocellular, biphasic में generally hepatic jaundice देखने को मिलता। ठीक है, मैंने पढ़ा था, कंटिन्यू करूँ, आर यू विथ मी, समझ में आ रहा? अब थोड़े टेस्ट जो है अपन परफॉर्म करते थे, apart from the LFT there are other tests are also there which will give you the information regarding the liver health. LFT तो है ही है, apart from that other test भी है जिसकी बेसिस पे आप लिवर हेल्थ के बारे में मालूम कर सकते। चलिए, फंक्शंस ऑफ द लिवर भी डाइवर्सिफाइड है, तो फंक्शन ऑफ द टेस्ट भी डाइवर्सिफाइड है। टेस्ट बेस्ड ऑन द एक्सक्रीटरी फंक्शन, बाइल पिगमेंट किससे देखेंगे बेटा, फोचेट टेस्ट, आप बायोकेमिस्ट्री से क्लियर करें आप फोचेट टेस्ट। नाउ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ this thing, excretory products of the liver, and this is going to get tested by the Fochet test and the Hayes test. आप करें दो भी टेस्ट आपके हाथ से, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट द ब्रोमोसल्फोथिलीन टेस्ट, BSP टेस्ट। अब ये जितने BSP टेस्ट है ना, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज हुए हैं। Okay, Bromosulfothilin test, it is a type of bromosulfothilin, it is a type of dye which is completely excreted by the liver. अब इसका मतलब क्या है मालूम, ब्रोमोसल्फोथिलीन एक ऐसी डाई है, अगर किसी इंसान को दिए आप, अगर उसका लिवर हेल्थी है तो completely is going to get excreted out. Okay, ब्रोमोसल्फोथिलीन समझे बात मेरी, ब्रोमोसल्फोथिलीन डाई एक ऐसी डाई है, अगर आपको दे दिया, मैं खाओ बोल के दे दिया, अगर वो खाए ना, अगर आपका लिवर हेल्थी है समझो, तो उन्हें कंप्लीटली निकल जाती है आपकी बॉडी। कहाँ से निकलती? ठीक है ना, bromosulfothilin dye, it is a type of dye which is going to get completely excreted by the liver. Now you are doing the experimental purpose,
Barmosulfathiline dye administered IV. IV stand for intravenous. कितना देना जी भाई? 5 milligrams per body weight of the subject. Subject मतलब biochemistry. person को subject बोलते हैं. ठीक है? क्या करना? उसका body weight लेना. कितना body weight रहना उसका? देख चेक करके 5 milligrams per body weight उसको IV देना. ठीक है? Now serum concentration is moving to measure at 45 minutes and 2 hours. 45 minutes में चेक करना, 2 hours में चेक करना. Now normally 5% are dye retained at 45%. That means that जितनी quantity में आप dye दिए ना, 95% dye आपकी body में से निकल जाती है, intestines में आ जाती है, circulation में नहीं रहती उन्हें. 5% है सर. अगर जिसको प्रॉब्लम है लिवर की, तो उनके अंदर more than 5% देखने को मिलता है आपको. Dye is not going to get eliminated out. ठीक है? डाई आपकी बॉडी में से नहीं निकलती 45 मिनट्स के बाद, सर्कुलेशन में स्टिल है. इसका मतलब द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी पार्ट फंक्शन ऑफ द लिवर. फिर से एक बार बोलूं मैं, बर्मोसल्फेथिलिन डाई एक ऐसी डाई है जो आपको देने के बाद में से उन्हें आपकी बॉडी में से 45 मिनट्स के बाद निकल जाती है. जनरली होता हेल्दी इंडिविजुअल 5% तक रह सकती है, 95% इंटेस्टाइन में आ जाती है. But those who are suffering from the diseases related to the excretory part function, उन लोगों में क्या होता है बच्चों? उन लोगों में डाई वो नहीं डाइजेस्ट होती, नहीं निकलती. In spite of that, dye will still in the circulation. ठीक है? So BSP, Barmosulfathiline test, is used to access the excretory function of the liver. Whether your liver is performing excretory function well or not. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट प्यारा टेस्ट. यस, टेस्ट बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम्स. ये तो बहुत फेवरेट है, हर बच्चे कुछ माने. ठीक है, हर बच्चे कुछ माने. टेस्ट बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम ट्रांसअमाइनेज. जहाँ कहीं भी ट्रांसअमाइनेजेस की बात आएगी ना बच्चों, तो दो चीजों के बारे में जरूर बोलना, एसजीपीटी और एसजीओटी. एसजीपीटी का दूसरा नाम क्या है बोलो रहमान? अल्कलाइन. हाँ, एसजीपीटी का दूसरा नाम क्या रखे अपन? ALT रखे. ALT, एलानाइन ट्रांसअमाइनेज. एलानाइन ट्रांसअमाइनेज. एसजीओटी का क्या है दूसरा नाम बोलो? एसजीओटी दूसरा नाम क्या है? ASP, एस्पिरेटेड ट्रांसअमाइनेज. एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. SGOT, SGPT ये जनरली लिवर हेल्थ को डिटेक्ट करते हैं. द नॉर्मल लेवल ऑफ द SGOT SGPT इज अबाउट 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. अच्छा, SGOT SGPT के नॉर्मल लेवल क्या रखना जरूरी है, देखिए एग्जाम में 3 मार्क्स की पूछताछ बच्चों. ठीक है. अच्छा, आपको मालूम है SGOT इंडिविजुअली अगर इंक्रीज हुआ तो इट इज इंडिकेटिंग द लिवर डिजीज. अच्छा, इंडिविजुअली अगर इंक्रीज हुआ अलोंग विद द बिलिरुबिन. अच्छा बच्चों को ये भी याद है, बिलिरुबिन में इंक्रीज होगा अगर लिवर डिजीज. ठीक है. SGOT अगर इंक्रीज हो रहा SGPT के साथ तो लिवर डिजीजेस. इंडिविजुअली डिजीज हुआ तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल हार्ट अटैक को बोलो खुदा का बोलते हैं तो ज्यादा होती है. सेकंड एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस. Alkaline phosphatase, if it is increasing along with the serum bilirubin, it is related to the obstructive jaundice, liver health. Solo increase हुआ bone diseases. bone एक disease का नाम बोलो ना जी भैया? osteoporosis. Paget disease, PAGET. Paget disease एक टाइप का bone disease है, bone deformity इसका. इसके अंदर ALP में, rickets में भी ALP increase होता. ठीक है ना. अब थर्ड वर्ड गामा ग्लूटामेट ट्रांसपेप्टिडेज, GGT. ठीक है. इट इज अ सेंसिटिविटी इंडेक्स टू एक्सेस द लिवर एब्नॉर्मलिटी, इंक्रीज इन द ऑब्स्ट्रक्शन एंड अल्कोहलिज्म.
पी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये वो करे तो जीजीटी टेस्ट ना कराए। और 24 आवर्स में जनरली हाई लेवल्स देखने को मिलते हैं आपको जीजीटी, तो इस वाले एज का ठीक है जीजीटी। सिगरेट आप ये भी बढ़ता है। कमिंग टू द 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये भी टाइप का एंजाइम है, ठीक है। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, इसके डिनोट्स हम डाल देंगे ग्रुप में। 5 nucleotides, 2 to 10 units per letter is going to get happen. Increase in the hepatobiliary diseases parallel to the ALP, ठीक है। ALP कैसा बढ़ता? लिवर डिजीजेस में बढ़ता। ऐसे 5 nucleotides भी लिवर डिजीजेस में बढ़ता। Generally in cases of the hepatobiliary diseases, hepatobiliary diseases मतलब लिवर एंड लिवर में प्रॉब्लम है, गैलब्लैडर में लिपाटोबाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसी चीजों में बढ़ता है। लेकिन स्पेशलिटीज की क्या है? 5 न्यूक्लियोटाइडेज की स्पेशलिटी क्या है तो बट द एडवांटेज इज गोइंग टू गेट नॉट अल्टर इन द बोन डिजीजेस, whereas ALP is going to alter in the bone diseases। ALP मेरे प्यारे बच्चों लिवर के हेल्थ में भी बढ़ता, बोन के हेल्थ में भी बढ़ता। लेकिन 5 न्यूक्लियोटाइडेज सेम लिवर के ALP के जैसे लेता, लेकिन उन्हें खाली लिवर के टाइम पे बढ़ता, बोन के टाइम पे 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ओके, कमिंग टू द टर्म जॉइंटिस, यहाँ पे जॉइंटिस के बारे में बात। जॉइंटिस एक वर्ड निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है येलो, जॉइंट येलो। येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ आई, इंक्रीज इन द सीरम बिलिरुबिन बियॉन्ड 2 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर। अब 1 तक नॉर्मल है, 1.5 तक भी नॉर्मल ही बोलते, ठीक है। जब आप 2 के पार चले जाते हो उसको जॉइंटिस बोलते, उससे पहले नहीं बोलते जाने, उसके बाद उससे पहले अलार्मिंग बोलते, सुधरो सुधरो सुधरो, ठीक है। 1.9 का आया, 1.8 का आया, तो you are moving towards the jaundice, you are not enter into that. Coming to the jaundice, we have to discuss hepatic jaundice, obstructive jaundice, and hemolytic jaundice. Unconjugated urinary constriction। अच्छा, hemolytic jaundice में क्या होता? Unconjugated bilirubin बढ़ता, अभी बताया ना जी भैया, सही। उसके साथ साथ क्या होता मालूम? इंक्रीज इन द यूरिनरी सेक्रीशन ऑफ यूरोबिलिनोजिन। एक तो क्या बढ़ रहा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, हेमोलाइटिक टाइप ऑफ जॉइंटिस है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट। एज वेल एज यूरिन में क्या देखने को मिलता? यूरोबिलिनोजिन। स्ट्रिक्ट मेथड करते ना जी भाई अपन, स्ट्रिक्ट मेथड में क्या देखने को मिलता आपको? यूरोबिलिनोजिन बढ़ के है, बढ़ के, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ थिंग इट इज द कौन सा टाइप का जॉइंटिस है वहां पे? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन सा है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज वेल एज ALP इज आल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज, ALP AST भी इंक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव हीमोलाइटिक में जनरली नहीं होता, कई को नहीं होता भाई। हीमोलाइटिक जॉइंटिस में कई को ALT AST बढ़ के नहीं आता, हां सर्कुलेशन में रहता, लिवर से रिलेटेड नहीं है ना जी, वो डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, वो डिग्रेडेशन। Now coming to the hepatic jaundice, increase in the unconjugated and conjugated bilirubin along with the AST and ALT। Now test based on the metabolic capacity। अब metabolic capacity मतलब कुव्वते क्या बोलेंगे? What should be saying in the Urdu? Absorption। कुव्वते हाजमा। ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक कैपेसिटी इसको उर्दू में ऐसे तो लिखे शायद ना, कुव्वत हाजमा, हजम करने की कुव्वत, नहीं बोलते लोग, चलिए कुव्वत हाजमा कमजोर है चलिए कमिंग टू दिस, we want to check that whether the metabolic activity of the liver is happening properly or not. For that purpose they have been introduced a test called galactose tolerance test। अच्छा, इसको भी GTT बोलते हैं, galactose tolerance test, लेकिन नहीं बोलना चाहिए GTT अपन एक नाम से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ग्लूकोज टॉलरेंस, फिर अलग कहीं को बोलना, इसीलिए बुक्स में कहीं भी नहीं है। तो कहीं गैलेक्टोज टॉलरेंस GTT भी अगर आपको पूछा हो तो GTT के बारे में लिखिए, तो गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में लिखिए। गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट को कहीं भी GTT के नाम से नहीं मालूम क्या है, ठीक है। जब कभी भी GTT अपन बोले बुक्स में पढ़े तो उसका मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट अपन देख रहे हैं, गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मोनोसैकेराइड इजी टू डाइजेस्टेबल है कंपेयर्ड टू डाई एंड पॉलीसैकेराइड, जल्दी हजम हो जाता है मोनोसैकेराइड।
It's a monosaccharide exclusively metabolized by the liver. लिवर क्या करता, ये जिसको तोड़ने की ताकत रखता. The subject, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को तो बायोकेमिस्ट्री है, नहीं है, पर्सन है जिस पे पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर. ठीक है, टाइम का 35. चलिए. The subject is given intravenously administration of galactose. आईवी के जरिए क्या दे रहे जी अपन? गैलेक्टोज दे रहे. क्या दे रहे? गैलेक्टोज. गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकराइड दे रहे. यही वो लिवर हेल्थी इंडिविजुअल में डाइजेस्ट कर सकता है जल्दी. ठीक है, तो अपन क्या कर रहे? इंट्रावेनसली गैलेक्टोज दे दे. जितना बोले उतना दे दे, नहीं देना चाहिए ना, तो वहां भी रहता है 300 मिलीग्राम्स पर. अच्छा, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में कितना ग्लूकोज देना? 75 ग्राम 75 ग्राम. अगर कोई इंसान 140 किलो का है तो जब क्या करेंगे अपन? कैलकुलेशन क्या है? समथिंग पर केजी छोटा बच्चा है तो अगर इसको जीटीटी कराना है, डॉक्टर बोला जीटीटी करो बोले 75 ग्राम देते हैं. तो क्या करना? मैं बताऊं, अगर भेज देते हां करके 0.5 ग्राम पर कैसा देते? बॉडी वेट पर केजी 1.75 ग्राम्स पर बॉडी वेट. कैलकुलेट करके देना चाहिए. सब फिर 2 चमचे मिला, तुम भी 2 चमचे मिला. ये याद रखना, इंटरव्यू में कैसा ये पूछता फिर उन्हें गए तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ याद है? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मालूम ही नहीं होगा कईयों को. खाली जाके एग्जाम के पास बैठते हैं, सूर्या जब यहाँ से जाए ना आगे रिसेप्शन पे लगे हुए थे. दूसरे तो आते भी नहीं ना. नहीं, एक बेवकूफ दूसरों से को बनाया. The subject is given intravenously administration of on record करो देखो. चलिए, the subject is given intravenously administration of galactose, that is 300 milligrams per kg of body weight. Blood is drawn at 10 minutes interval for 2 घंटे के लिए. 2 घंटे के लिए 10-10 मिनट से निकालना. ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस है, सही ना करो प्लीज. ये पुराने जमाने का आपको टेस्ट ये भी मालूम रहना पड़ता है. 10-10 मिनट में निकालते बैठे तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको एक कैनुला लगाना पड़ता. ठीक है, कैनुला के जरिए ड्रॉ करना पड़ता. 10-10 मिनट निचवाने देते थे, आप ही नहीं देते दूसरे के आदमी. ठीक है, एंड गैलेक्टोज एस्टिमेटेड. ठीक है, 10 to 15 मिनट के बाद में द यूजुअली द गैलेक्टोज लेवल्स विल गोइंग टू गेट डाउन. जैसा आप गैलेक्टोज देते हैं, सिंपल शुगर है. आप याद रखिए, आपकी बॉडी को सिंपल कंपाउंड हजम करने में आसानी देती है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, सिंपल कंपाउंड जब कभी भी होता ना, बस यहाँ पे गैलेक्टोज एक सिंपल कंपाउंड है. अपन क्या करें? 300 मिलीग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट अपन आईवी के जरिए इसको गैलेक्टोज दे दी. 10 से 15 मिनट के बाद जनरली गैलेक्टोज लेवल्स विल गोइंग टू गेट रिड्यूस एंड bring it back to the normal. बट अगर गैलेक्टोज लेवल्स आप 2 घंटे के बाद में भी देखें बढ़े हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, that means that problem is related to the metabolic activity. आपका लिवर का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है. एक्सक्रीटरी अच्छा होगा, प्रोटेक्टिव अच्छा होगा, दूसरा अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिवर इज गोइंग टू गेट टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट. चलिए आखिरी स्लाइड. आई भी ले रहे हो ओरली एक क्वेश्चन लिखना ना. टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फंक्शन. सीरम एल्बुमिन बच्चों, एल्बुमिन solely synthesized by the liver and is a good marker to access the chronic liver damage. एल्बुमिन हमेशा आपके लिवर में बनता है. लिवर में बनता, लिवर पे बनता, सर्कुलेशन में. ठीक है, solely going to get formed inside the liver and it is a good marker for the liver damage. मार्कर है, not head and soul. ठीक है, आगे देखिए एल्बुमिन.
एलर्जी में एल्बुमिन कट देना चाहिए अपन। गुड मार्क। Decreased level of the albumin is going to get seen in the severe liver damage. However, they are also going to get decreased due to the other factors such as malnutrition. अगर कोई खाना बराबर नहीं खा रहा, जिसकी वजह से भी लो लेवल्स देखते हैं। आप किसी के अंदर लो लेवल ऑफ एल्बुमिन दिखा तो डायरेक्ट लिवर डिजीज है नहीं बोल सकते आप, कहीं को नहीं बोल सकते। मालूम कोई इंसान खाना भी नहीं खा रहा होगा जी बराबर, जिसकी वजह से क्या हो रहा, माल न्यूट्रिशन हो रहा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। आप लोगों को जो है वो माल डिफिशियंसी है। चलिए हाँ तुम आपको चलिए प्लीज। अच्छा, सीरम एल्बुमिन लेवल लो हो गए ना तो वो पेशेंट के अंदर कंपलसरी एक चीज देखने को मिलती बोलता हूं मैं हमेशा, क्या? अगर सीरम एल्बुमिन लेवल्स अगर लो हो गए ना किसी के अंदर तो एक वो पेशेंट के अंदर एक चीज कंपलसरी देखने को मिलती, क्या? नो, सीरम एल्बुमिन लेवल्स आर लो। बिना टेस्ट के भी बोल सकते तुम्हारे एल्बुमिन लेवल से पर चेक करा लो भाई तुम बोल कहीं कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, एडिमा, पेरिफेरल रीजन्स पे फ्लूइड। एल्बुमिन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। लो लेवल्स हो गए तो टॉक्सिक मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उन्हें, जिसकी वजह से स्वेलिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एट द पेरिफेरल रीजन। एडिमा देखने को मिलता जाता है कि दोज वाज फ्रॉम द पैराफ हो जाते हैं। पेरिफेरल रीजन पे क्या-क्या खुलता है बात में मेरे नहीं। अच्छा आप भी खुल रहे हैं, दैट नीड टू गो ऑन द नेक्स्ट। चलिए कमिंग टू द अल्फा फीटोप्रोटीन, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। अल्फा फीटोप्रोटीन, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द yolk sac ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। जब आपका फीटल डेवलपमेंट, आप जब बच्चे थे, वूम में थे, वो टाइम पे अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता आपकी बॉडी में। क्यों? डेवलपमेंटल ऑफ द फीटल। बट डिक्रीज इज गोइंग टू गेट हैपन आफ्टर द बर्थ। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है मालूम, elevation going to get seen in the adult due to the hepatocellular carcinoma. What is the hepatocellular carcinoma? अगर देखो जो यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं, एक टाइप का प्रोटीन है उन्हें, जो आपकी बॉडी के अंदर जब आप फीटल डेवलपमेंटल फीटस में थे ना, वो टाइम पे अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स हाई रहते। कहीं को हाई रहते मालूम, बिकॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट में ये बच्चे के डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन जब आप बर्थ हो जाती है आपकी तो अल्फा फीटोप्रोटीन ऑलमोस्ट नील हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बिकॉज वैसे डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं होते आपकी बॉडी में। सो समटाइम क्या होता था मालूम, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में अल्फा फीटोप्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस रहता आपकी बॉडी में, उतनी हाई लेवल्स में नहीं रहता। अगर कोई एडल्ट के अंदर अगर एडल्ट के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स अगर बढ़ के बता लेना तो जनरली इसमें देखने को मिलता वाला हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। बट कार्सिनोमा में क्या होता, कार्सिनोमा इज अ अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। कोई वायरस नहीं है जी भैया, कैंसर कोई बैक्टीरिया नहीं है, क्या है उन्हें अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। हर सेल को टारगेट दिया हुआ है, इतने लेवल पे बढ़ना, उसके बाद तो रुक जाना। अगर हार्ट अगर खुल गया तो क्या हो जाता, बड़ा हार्ट होता था, फिर तुम्हारा कोई ना कोई है ना। तो आपको मालूम हुआ कि देयर इज कंट्रोल डिवीजन इज गोइंग टू गेट टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी। बट समटाइम क्या होता है, लिवर मिस्टेकली ड्यू टू द म्यूटेशन, अल्टरेशन इन द जीन्स, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता, हेपाटिक सेल्स आपके जो अल्फा फीटोप्रोटीन बना रहे थे ना वो बहुत बढ़ जाते, जिसकी वजह से अल्फा फीटो लेवल गोइंग टू गेट इंक्रीज। अगर किसी के पास अल्फा फीटो लेवल प्रोटीन लेवल्स अगर एडल्ट में बढ़ के बता रहे तो श्योरली दे आर सफरिंग फ्रॉम द हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर से उन्हें सफर कर रहा है। Those are suffering from the cancer of the liver, then they can have the increased level of alpha fetoprotein. So it is the aboli. Alpha fetoprotein is test भी होता है, ठीक है। As well as they are also going to act as a biomarker to detect the tumor of the liver. Generally tumor of the liver आपका जैसे कार्सिनोमा में होता है, ठीक है, गड्ढा बन जाता अच्छा लिवर।
अच्छा, कमिंग टू द थर्ड थिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आपको मालूम है क्लॉटिंग फैक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग कैस्केड जो भी होती है आपकी, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द टाइप ऑफ प्रोटीन they are going to get released from the liver. Intrinsic factor and extrinsic factor. Intrinsic factor, extrinsic factor को रिलीज करो, कौन सा विटामिन बोलता? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के क्या करता है? जाके लिवर को उठाता, भैया उठो, क्लॉटिंग फैक्टर बना के रिलीज करो। क्लॉटिंग फैक्टर की फैक्ट्री कौन सी है? लिवर है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन टेस्ट कर रहे हैं, पीटी एपीटीटी, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ के आ रहा है आपको, तो इसका मींस, इट मींस दैट क्लॉटिंग फैक्टर बराबर नहीं बन रहे। सिंपल बात हुई ना जी, ठीक है। चलिए पढ़े। लिवर सिंथेसाइज ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स concentration which is the blood clotting factor, decrease in the clotting factor found in impairment with the liver function. This can be assessing in the live by measuring in the PT, prolong in the liver disease. PT और APTT में फर्क क्या है मेरे बच्चों? PT कौन से फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है? APTT कौन से फैक्टर? अगर PT बढ़ के आया, APTT नॉर्मल आया, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से या एक्सट्रिंसिक? PT APTT दो कैसा कर देना अपन? PT बढ़ के आ रहा है, APTT नॉर्मल आ रहा है, तो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक? अब बोले तो यही है ना, तो पीटी हमेशा इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी में बढ़ के आता, एपीटीटी हमेशा एक्सट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी में बढ़ के आता। ये बात याद रखिए। हां, पीटी अंदर, एपीटीटी बाहर। ओके, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग पीटी देखने को मिलता अगर आपकी लिवर है सही से बराबर है, प्रोलॉन्ग पीटी। The last thing, that is the test based on the detoxification. Detoxification. What do you mean by the detoxification? Removing the toxic material from your body. Point one, converting the toxic material into the intoxic thing and removing it. That's called xenobiotics. ठीक है? अमोनिया को यूरिया में करता है, अमोनिया डायरेक्ट नहीं निकलता भी नहीं, तो अपन क्या करते हैं? यूरिया में कन्वर्ट करके निकालते हैं। आपको मालूम यूरिया से अपन पढ़े पीछे होता है, ठीक है। कमिंग टू द टेस्ट बेस्ड ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए, फर्स्ट इज द, इट इज इन दिस केस इज द फर्स्ट का एज है हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस, हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस मतलब, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन? हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस को बना के देखो क्या कैसा। देखिए, liver is a major site for the metabolism of xenobiotics, removing of this toxic material. अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, सोडियम बेंजोएट स्टिमुलेट द हिप्यूरिक एसिड। सोडियम बेंजोएट अगर किसी पेशेंट को दिए ना जीवन, तो उन्हें क्या करता है? हिप्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने लगाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है भैया? समझ में आई बात शोएब भाई? हाँ, अपन क्या करें? 6 grams of sodium benzoate dissolving in the water. It's given orally without any kind of bread, without any other things. Given after a light breakfast. थोड़ा सा light breakfast करा के अपन पेशेंट को orally क्या दे रहे? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या करता है भाई? किसको प्रोड्यूस करता? हिप्यूरिक एसिड, ठीक है ना। आफ्टर एम्प्टीइंग द ब्लैडर, उसका यूरिन का ब्लैडर पूरा एम्प्टी करा लेके, यूरिन को उसको भिजा के आप क्या करें? लाइट ब्रेकफास्ट देके 6 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट दे रहे। देने के बाद में उसका यूरिन कलेक्ट कर रहे। कब तक कलेक्ट कर रहे? 4 आवर्स तक, 4 आवर्स ना। अमाउंट ऑफ द हिप्यूरिक एसिड देख रहे। अब यहाँ पे पॉइंट है, अपन दे रहे सोडियम बेंजोएट, दे रहे सोडियम बेंजोएट, चेक करे हिप्यूरिक एसिड का इको स्टिमुलेशन है, ठीक है? स्टिमुलेशन emptying the bladder, amount of the hippuric acid is going to get excreted is estimated because sodium benzoate is acting as a stimulation. Now in the healthy individual कितना दिए थे मेरे बच्चों? 6 ग्राम दिए थे। 4.5 gram of the hippuric acid is excreted. Reduction in the hippuric acid indicate the hepatic damage. 6 grams दिए तो 4.5 grams को भी बाहर निकल के आना। कौन निकल के आना? हिप्यूरिक एसिड। अगर नहीं निकला तो क्या मतलब?
liver is not detoxifying properly. ठीक है? सही है That's all about the liver function test. और सोनिया? इसके keynotes आपको हम दे देंगे. सानिया? Go through it. If anything is there, please do let me know. हम बैठ रहे हैं